How are you, dear students? In this class, we will start our new chapter, Quadratic Equation of Class 10th Mathematics. So, for that, first I will give you overview of the whole chapter. सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस पूरे चैप्टर में. How many topics we have to cover. So, let's start with the basic overview. तो आप लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें quadratic equations. Quadratic equations means what is the general form of any quadratic equation. After that, how we represent any mathematical situation with the help of quadratic equation. Also, we will learn how to represent mathematically, and which we have to represent. We have to represent any situation. How to represent any situation mathematically with the help of quadratic equations. That means we will use this quadratic equation practically. हम अपनी situations में quadratic equation का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हमारी डेली लाइफ में आती हैं जिसे हम quadratic equation की हेल्प से सॉल्व करते हैं. We will come out with those problems also. Next we will study. सबसे पहले तो हमने देखा है जनरल फॉर्म क्या होती है, कैसे हम पहचानते हैं whether given equation is quadratic or not. Next step, how we represent our situations with the help of this equation. नेक्स्ट, अगर सिचुएशन को हमने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया है, देन हाउ वी डिराइव सोल्यूशन ऑफ दैट. उसके बाद हम देखेंगे सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नाउ व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दोज क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स वी हैव कन्वर्टेड. जो भी हमने कन्वर्ट की है उन क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. अर्लियर वी नो वन मेथड जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं. फर्स्ट मेथड वाज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. दिस वाज ओल्ड मेथड जो हमने अभी सीखा हुआ है ऑलरेडी. अप टू क्लास 9th वी स्टडीड इट. नाउ नेक्स्ट मेथड इज which is new to you, quadratic formula. We will use quadratic formula to obtain solution of these type of equations. So this is new to you. ये अभी हम 10th में सीखेंगे. Next method is completing square method. So completing square method is also one of the way to find out solution of quadratic equation. It is also new. So these are most important. They are generally asked in your board examination because these are new method and everyone is already known of this one. ये सबको पहले से ही मालूम है. It comes less. We generally ask for this. But we should have command on all three. Whatever they ask us, we should answer perfectly. Now after getting solution of quadratic problems, now next topic will come to you is that nature of roots. Nature of roots means what do you mean by roots? आप पढ़ चुके हैं already roots in chapter 2 polynomial in same 10th class book. Roots यानी solution जो आपके answers होते हैं. Because it is quadratic problem, so that means it have two answer. जब दो answers हैं यानी two solution हैं, two roots हैं. ओके, सो टू रूट्स हैं. उनका नेचर कैसा है? नेचर मीन्स क्या वो रियल रूट्स हैं जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या फिर वो आउट ऑफ आवर अप्रोच हैं. अप्रोच मीन्स हमारी पहुंच से बाहर जो हैं, यानी वो रियल नहीं है, इमेजनरी हैं. तो अब इसका हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? Practical application of studying this topic is that after finding out nature, हम बता सकते हैं कि जो आपको situation दी गई है अभी, वो अभी practically possible है या नहीं. Practically possible means वो हमारी real life में exist कर सकती है. So this way we will study practical approach of nature of roots of solution.
ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा चैप्टर अपना सम अप करेंगे एंड वी विल इन अपकमिंग वीडियोज़ and in this video also we will try to focus on topics along with examples also so that you can do questions easily. हम इसके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड वी विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना आए. सो वी विल स्टार्ट विद द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, then we will go to this topic, then this to the last topic. So this matter will be sum up in 4 exercises given in your NCERT book. So we will start with the most basic one, general form of quadratic equations. So now general form of quadratic equation. अब हम किसी quadratic equation को general form में कैसे represent करते हैं. If you think for any example in your mind, अगर आप सोचें example कोई भी quadratic equation का, quadratic का मतलब सबसे पहले तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं polynomial chapter में, that is degree 2. वी आर बोदरिंग अबाउट डिग्री 2, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. ठीक है, सो इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल वी विल डिस्कस हेयर. अब एग्जाम्पल अगर आप सोचें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं. 2x² + x + 1 दे सकते हैं, आप 2x² + 1 भी दे सकते हैं. ओके, और यू कैन राइट 2x² + x. अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने तीनों टर्म्स लिए हैं, यानी x² भी लिया है, x⁴ भी लिया है, x⁴ भी लिया है, यानी हमने 210 सारी पावर x की ली है. सो इट इज़ द परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म. नीचे हमने x⁴ को डिलीट किया, यानी सिर्फ हमने कांस्टेंट लिया है और x⁴ की टर्म ली है. थर्ड एग्जाम्पल में हमने कांस्टेंट हटा दिया है, सिर्फ x⁴ तक रखा है. यानी ये तीनों एग्जाम्पल हैं हमारे क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड है. इसी से ही आप नीचे पहुंच सकते हैं इजीली. तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ही सीखेंगे. सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल p ऑफ वेरिएबल x, सो जनरल फॉर्म इज गिवन बाय ax² + bx + c, where a, b and c are real numbers and one thing should not be zero. अब ये आप लोग बताएंगे कि क्या ज़ीरो नहीं है. यू विल थिंक फॉर दैट, देन आई विल मेक इट क्लियर टू यू. देखिए, तो जनरल फॉर्म जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो होती है ax² + bx + c. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ a is 2, 2x², b is 1, 1x, c is 1, here 1, x⁴ है, वो आप x⁴ हमने लिखा है इसे, यानी यहाँ x नहीं है. सो इट इज़ जनरल फॉर्म, यानी यहाँ पर एक x² की टर्म होगी, x⁴ की टर्म होगी और एक खाली नंबर होगा, कांस्टेंट होगा. तो इसमें यहाँ पर आप a b c कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ यही फिक्स रहेगा x⁴ एंड x⁴. ठीक है, रियल नंबर a b c कुछ भी हो सकते हैं, और एक कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में एक चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. अगर वो ज़ीरो हो गई तो ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. वो क्या है? वो है हमारा a शुड नॉट बी ज़ीरो. इफ़ बाई चांस a इज़ ज़ीरो, सी हेयर, अगर हमने a ज़ीरो ले लिया है, सो 0x², b हम कुछ भी ले सकते हैं 1x, c हमने 2 ले लिया है. सो 0 × x² विल गिव यू 0, 0 + x + 2 दैट इज़ x + 2. यानी हमारी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम लीनियर में कन्वर्ट हो गई है, डिग्री 1 की रह गई है सिर्फ. तो यानी अगर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम को अपनी नेचर मेंटेन करनी है तो a कभी ज़ीरो नहीं लेंगे आप. a शुड नॉट बी ज़ीरो, बट यू कैन टेक b. सो हेयर बी सी कैन बी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो हो सकता है, सी भी ज़ीरो हो सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं हम जहाँ पर बी एंड सी ज़ीरो रहेंगे. हमने ए को लिया है 1 + 0 × x + 0, सो वी हैव 2x², यानी ये भी क्वाड्रेटिक है बिकॉज डिग्री इज़ 2. So I hope you understood what is the general standard form of any quadratic equation. So this one will be the standard one. Now we will come to the situation how we convert any given problem mathematically to quadratic equation. अब हम वो देखेंगे with the help of example. So example 1 is here from your NCERT book. Represent the following situation mathematically. There are two situations. I wrote one only here. पहले हम first समझेंगे, then we will go to second one. So here John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. अब इसको हम समझ लेते हैं. What is given in problem?
जॉन एंड जिवांती देयर आर 2 फ्रेंड्स, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस, दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं, खो दिए हैं। अब दोनों के पास 5 कम हो गए हैं। अब जो नए मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो वो 124 के बराबर आ रहा है। अब हम जानना चाहते हैं स्टार्टिंग में उन लोगों के पास कितने मार्बल्स थे। तो सबसे पहले देयर आर 2 फ्रेंड्स, हम किसी भी एक फ्रेंड के मार्बल एक्स सपोज कर सकते हैं बिकॉज बोथ मार्बल्स आर अननोन। सो वी विल स्टार्ट विद सपोजिशन। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन बी एक्स। हमने सपोज किया है जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं। अब दोनों के पास मिलकर 45 थे, अगर जॉन ने एक्स ले लिए तो जिवांती के पास 45 माइनस एक्स बच जाएंगे। सो देन नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जिवांती आर 45 minus x. Then Jivanti has marbles 45 minus x. ये अभी हमने ओरिजिनल उनके पास स्टार्टिंग देख ली है कि जॉन ने x मार्बल्स लिए हुए हैं अपने हाथ में और 45 माइनस एक्स जिवांती के पास है। अब आफ्टर सम टाइम दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो चुके हैं, खो चुके हैं। सो आफ्टर लूजिंग 5 marbles, जॉन हैव, अब जॉन के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे, पहले एक्स थे 5 खो चुके हैं, उसके पास अब एक्स माइनस 5 मार्बल्स रह जाएंगे। इसी तरह जिवांती के पास भी भी 5 मार्बल्स खो चुके हैं। सो जिवांती हैव 45 माइनस एक्स में से भी 5 माइनस हो गया, यानी से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। अब उसके पास सिर्फ 40 माइनस एक्स मार्बल्स रह गए। अब आपको हिंट दिया गया था कि जब आप 5 मार्बल्स दोनों के खो चुके हैं तो आप प्रोडक्ट लेते हैं नए नंबर ऑफ मार्बल्स का, तो आंसर 124 आता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ बोथ पर्सन, यानी दोनों की जो प्रेजेंट मार्बल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है आपको। सो आई विल मल्टीप्लाई x माइनस 5 इंटू 40 minus x and their product is equal to 124. So I will put equal to 124. अब इसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x is equals to 124. So this implies minus x square 40 plus 5 45x minus 200 minus 124 equals to 0. So I can write this implies minus x square plus 45x minus, it will give me 3 2 4 4 2 and 3 is equals to 0. अब हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को राइट साइड, यानी सभी तीनों टर्म्स को शिफ्ट कर लीजिए ताकि ये फर्स्ट टर्म हमारी पॉजिटिव हो जाए, थोड़ी हमारी फॉर्म प्रॉपर हो जाए। सो और वी कैन राइट एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. सो वी रिप्रेजेंट आवर प्रॉब्लम मैथमेटिकली। अब अगर आपके पास कोई ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है, हमारी डेली लाइफ में ऐसी कंडीशन जनरेट हो सकती है, तो हम विद द हेल्प ऑफ मैथ्स उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, हमने अपनी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसे भी हम सॉल्व करना जानते हैं, हम बता सकते हैं इसे सॉल्व करने के बाद कि जिवांती एंड जॉन के पास कितने मार्बल्स थे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको मिडिल टर्म लगाना है, लेकिन जब यहाँ बोला गया ऑलरेडी सिर्फ रिप्रेजेंट कीजिए मैथमेटिकली, तो हम इसे यहीं ड्रॉप करेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनमें हमसे पूछा जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली वी कैन ट्राई एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड पार्ट ऑल्सो। सो लेट्स लुक ओवर दैट ऑल्सो।